Good morning, my dear students and dear faculty members and senior faculty, respected senior faculty members also. Today we again start the topic, the chapter projection of point, and yesterday we already discussed in that lecture about the quadrant model. And when the quadrant line, object line or maybe point lie in different quadrant and having some distance from HP as well as from VP. And in yesterday lecture we locate the position of that point when that lie in different quadrants and with different distance. Clear? So we have the few problems again remaining from that chapter. We discuss that problems today again, and remaining problem basically. So as per the problem number first, the point E up to point D we already discussed in the yesterday lectures. So today we start from the point E. Problem number first, P.S. Gill, textbook P.S. Gill and chapter projection of point, and problem number first, part E. So in that case, he said the point E in HP and 40 mm below behind VP. He said the point E in HP. Stress on that point, on that line again. The point E in HP and 40 mm behind VP. तो ऑलरेडी जब भी वो आपका पॉइंट बिहाइंड वीपी जाएगा क्वाड्रेंट मॉडल में, सपोज वी हैव दिस इज द क्वाड्रेंट मॉडल एंड इन दैट केस वी हैव द एचपी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द यस्टरडे लेक्चर, वी हैव द वीपी इज हियर and when he said the point is behind, so definitely the observer stand right hand side of your quadrant model, and the point when he said the point is behind, then the point lie in second quadrant or maybe third quadrant, because second and third quadrant both are behind the VP, दोनों क्वाड्रेंट VP के पीछे है. So it means when he said the point E is behind VP, definitely it should be lie in maybe second or maybe in third quadrant. So then no, that lie in second and that lie in third quadrant. For find out that again we read the problem. He said the point E in HP and 40 mm behind VP in HP and 40 mm behind VP. तो behind VP तो जहाँ सेकंड में होगा ना थर्ड में, तो in HP और on HP. What's the mean of in HP and on HP? In HP and on HP means कि ऑब्जर्वर जहां से भी देख रहा है उसको आपका वो पॉइंट क्लियर कट नजर आ रहा है. क्लियर? सो अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ होता इन द थर्ड, सपोज यहाँ पे होता, so it means that is the condition is below on HP, but that is not seen from the top exactly to the observer. ठीक है? तो it means the point is not here now the point lie in second quadrant में suppose point यहाँ पे lie कर रहा है आपका. Now your point lie here in the second quadrant ऑन एचपी. ही सेड ऑन एचपी, तो ऑब्जर्वर जिधर से देख रहा है टॉप से देख रहा है तो उसको ऑन एचपी यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है. ऑन एचपी के ऊपर ये पॉइंट आपका पड़ा हुआ है. एंड ही सेड दैट इज 40 mm बिहाइंड वीपी और 40 mm वीपी के पीछे है. क्लियर? अगेन लिसन, he said the point on HP के on HP और in HP means HP के ऊपर ही पड़ा हुआ है. तो he said the point is on HP and 40 mm behind VP, तो 40 mm VP के पीछे है. Now exact position of the point in your quadrant model is here. यहाँ पे पड़ा हुआ point HP पे. तो it means ये second quadrant की अगर मैं position बोलूँ तो ये second quadrant ऐसे था. Now your point lie here on HP. I am the observer. I see from top view. So जब मैंने टॉप से देखा तो ये टॉप का पॉइंट जब मैंने टॉप से देखा so it's lie on HP. HP पे lie कर रहा है. You can see the point is on HP and observer is here in that model right hand side and on HP, and that's what that is 40 mm behind VP. 40 mm VP के पीछे है. 40 mm behind VP. It means exact position of the point lie here on HP. क्लियर?
तो जहां HP और VP मिल रहे हैं, पीछे कौन सी लाइन प्रोड्यूस हो रही है, वी आर द XY लाइन. सो these planes are transparent plane. So due to that when he said the point is on HP, पॉइंट आपका HP पे लाई कर रहा है, तो उसका फ्रंट व्यू ऑब्जर्वर को राइट हैंड साइड से कहां लाई करता दिख जाएगा, XY के ऊपर ही. Why its front view on XY now? Why its front view on XY? Because these planes are transparent and where the both planes are intersect to each other, they produce a XY line. So the point lie on HP, due to that its front view lie on the XY line. So it means in that case its front view is on XY line. XY line के ऊपर ही दिख गया front view. So this is the point E and that is which view? Front view. On which plane? HP पे पड़ा है, बट लाई ऑन कहाँ दिखा, XY के ऊपर लाई किया. तो इट मींस ये कौन सा व्यू था, ये HP का व्यू था जो XY के ऊपर लाई करता हुआ आपको फ्रंट से नजर आ रहा है. क्लियर? नाउ ही सेड द पॉइंट इज 40 mm बिहाइंड VP. अब वो कह रहा है कि जो आपका पॉइंट है वो VP से 40 mm पीछे है. ऑब्जर्वर इस तरफ है, तो यहाँ से ऑब्जर्वर ने अगर देखा देन दैट पॉइंट इज 40 mm बिहाइंड VP. ये पॉइंट 40 mm VP के पीछे इधर चला गया, दैट इज 40 mm बिहाइंड VP. तो जब 40 mm बिहाइंड VP चला गया पॉइंट, व्हेन यू सी फ्रॉम द टॉप देन इट्स टॉप लाई वेयर, टॉप लाई ऑन HP. टॉप कहाँ पे लाई किया, टॉप HP के ऊपर लाई किया. एंड हाउ मच, दैट इज 40 mm बिहाइंड VP, 40 mm VP के पीछे. तो 40 mm VP के पीछे उस पॉइंट का टॉप व्यू HP के ऊपर आपको नजर आया. Clear? See, exact position of your point is here. That is what? That is, this is the white point and that is 40 mm behind VP, 40 mm VP के पीछे. तो इसका टॉप व्यू कहाँ पे नजर आया, इट्स टॉप व्यू now lie on the HP. टॉप व्यू HP के ऊपर लाई करता हुआ नजर आ रहा है. When observer see from its top view, it's lie on HP here. So after taking the projection on HP, what we do? We rotate the HP into clockwise direction. तो ये 40 का पॉइंट आपको ऊपर जाता हुआ यहाँ पे ऊपर नजर आ गया 40 mm above XY. Clear? So in that case, its top view is on vertical plane, but that is above XY line. Above XY line हमें इसका ये टॉप व्यू नजर आया. And the point E, here the point is E, and denote the point with small because in the problem that is small with small letters. So here that is the front view E dash. और ये कहाँ पे पड़ा हुआ था पॉइंट, HP के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन किस व्यू पे नजर आया, फ्रंट व्यू पे. लेकिन नजर किस व्यू पे, किस प्लेन पे नजर आ रहा है, VP के ऊपर. lie on HP but seen on which plane, VP, vertical plane. और वर्टिकल प्लेन का जो पार्ट XY है, XY के ऊपर ही नजर आया. सो इट मींस वर्टिकल प्लेन पे तो है, बट यू कैन सेट हियर एट द एंड पोजीशन द पॉइंट लाई वेयर, द पॉइंट लाई ऑन XY line. In that case when that's lie on HP, its front view lie on the XY line. Clear? Then its top view, the top view is on VP, vertical plane. Vertical plane पे इसका कौन सा व्यू नजर आया आपको, टॉप व्यू. बिकॉज टॉप व्यू कहाँ पे दिखा हमें, HP के ऊपर. और HP को जब रोटेट होके ऊपर ले गए हम, तो ये कहाँ पे जाके दिखा, ये वर्टिकल प्लेन पे दिखा. लेकिन व्यू कौन सा था, द पॉइंट इज हियर. नाउ एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ योर पॉइंट इज हियर. सपोज when you observer see from right hand side, then its front view on XY and its top view on HP, and when we rotate the HP into clockwise direction, then the top view is above here like this, then its top view lie on VP now. Clear? So in that case its front view lie on XY line and its top view lie on vertical plane, because when we rotate the HP in clockwise direction then that is up to 90 degree with the VP. Clear? बट ये था पॉइंट किसका, VP पे तो नजर आया, लेकिन ये पॉइंट था कौन से प्लेन का, HP का. तो इट मींस HP रोटेट होके आपको एज ए टॉप व्यू यहाँ नजर आया VP के ऊपर, और फ्रंट व्यू रोटेट होके जो है आपको वो पॉइंट XY के ऊपर नजर आया. सो इन दैट केस व्हाट वी फॉलो फ्रॉम हियर, in that case we follow when any point lie on any plane, then it's maybe front view, maybe top view on the XY line. Clear? अगर कोई भी पॉइंट किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, it means on, fix on that plane, then its front view or maybe top view lie on the XY line. We follow from that problem.
when the point lie on any plane, then its maybe front view or maybe top view lie on the xy line. Clear? So this is the case when he set the point on HP and 40 mm behind VP. Okay. Next, the problem F. So in that case, the front view is on xy line. You can write here like this, and the top view is on vertical plane. था ये किस व्यू का? था ये HP का ही, लेकिन दिखा कहाँ? VP पे. when you rotate the HP into clockwise direction as per the concept of your coordinate model. Okay. So next, about the point F, he said the point in VP and 40 mm below HP. इस चीज को समझो आप. Now he said the point in VP. अब पहले केस में उसने क्या बोला था? पहले केस में उसने बोला था the point lie on HP. तो HP पे लाई कर गया था. In the first case he said the point lie on HP. But now he said the point lie on VP. अब वो कह रहा है कि आपका जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है. वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, तो मे बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और मे बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑन कह रहा है, तो इसलिए वो बिहाइंड VP नहीं है. ऑन VP मीन्स वो क्लियर कट दिख रहा है आपको, ऑब्जर्वर को सामने से दिख रहा है. ऑन और इन का मतलब क्लियर कट सामने से दिख रहा है. तो ऑन VP, तो ऑन VP कह रहा है, तो इट मीन्स इट मे बी लाइन फर्स्ट और मे बी लाइन फोर्थ. बट अब ये फर्स्ट में लाई कर रहा है, जहां फोर्थ में लाई कर रहा है. इसको कवर करने के लिए हम प्रॉब्लम को अगेन रीरीड द प्रॉब्लम. ही सेड द पॉइंट F in VP and 40 mm below HP. It means now he is talking about the below HP. Below HP है, तो it means definitely it lie in the fourth quadrant. ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्लियर? तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया, मैं आपको थोड़ा इसको ऐसे क्वाड्रेंट को रोटेट करके बताता हूँ कैसे लाई कर रहा है ये. Now this is your, इसको हटा देता हूँ मैं, थोड़ा आपको समझ आ जाए. Now he said the point is on VP. तो again I repeat, maybe line first, maybe in fourth. But अगर फर्स्ट में होता तो क्या कर बोलता वो above HP, 40 mm above HP. But now he said that is 40 mm below HP. तो it means HP के नीचे 40 mm पॉइंट आपका ऐसे हैंग कर रहा है. 40 mm below HP, it hang like this. 40 mm below HP. क्लियर? तो अब जो 40 mm बिलो HP आपका लाई कर रहा है पॉइंट, वो किस व्यू से नजर आ रहा है? इट्स लाई इन द फ्रंट व्यू बिलो द XY लाइन. क्लियर? सो इट मींस इन दैट केस यू कैन ड्रॉ दिस पॉइंट बिलो XY लाइन एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज 40. अब ये ऊपर नहीं है, अब ये कहां लाई करता हुआ आपको नजर आ रहा है? दैट इज 40 mm. इट लाई इन 40 mm बिलो HP. सो इट मींस HP के ऊपर 40 mm नीचे पॉइंट आपका लाई करता हुआ यहां नजर आ रहा है. सपोज लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज योर पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट व्हिच पॉइंट F seen from which view? Front view, due to that F dash, and that is seen on which plane? Vertical plane. Clear? That is 40 mm HP and that is in which view? Front view. So due to that is the F dash. Front view is denoted with dash. And that is on which plane? VP. तो 40 mm below HP आपको ये पॉइंट हैंग करता हुआ नजर आया इन द फ्रंट व्यू ऑन VP. क्लियर? तो फ्रंट व्यू तो आपने इसका देख लिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स टॉप व्यू. तो इसका टॉप व्यू कहाँ गया राजे फिर? ओके, तो बच्चे इसका टॉप व्यू कहाँ पे चला गया? सी इट. When he said that is 40 mm below HP and he also said the point on VP पे लाई कर रहा है और VP पे लाई कर रहा है. तो जहां VP खत्म हो रहा है नीचे उसके ऊपर क्या है? जहां VP खत्म हो रहा है उसके ऊपर हमारे पास क्या है? XY लाइन है. तो नाउ व्हेन दीस प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, तो जब उसने ऊपर से देखा तो इसका टॉप व्यू आपको कहां दिखा? इसका टॉप व्यू आपको XY लाइन के ऊपर ही नजर आएगा लाइक दिस. क्लियर? सो इट मींस इन द केस इट्स टॉप व्यू लाई हियर, its top view lie on the XY line here and that is its top view. Which point? That is the F. And front view without dash and top view without dash and front view with dash, and that is on which plane? Top view पे नजर आया. But in that case it lie on where? XY. इस केस में भी वो XY पे लाई करता हुआ नजर आया. तो इट मींस हमने दोनों केसेस में देखा. पहले केसेस में पॉइंट HP पे था तो उसका हमें XY पे लाई करता क्या नजर आया? फ्रंट व्यू. क्लियर? इस केस में पॉइंट कहां पे है? लाई ऑन VP है, तो इसमें XY पे लाई करता नजर आया इसका टॉप व्यू. तो इट मींस इस दोनों केसेस से हमने ये देखा व्हेन ही सेड द पॉइंट लाई ऑन एनी प्लेन
or maybe in any plane, then its front view or maybe top view lie on the xy line. Because where the both planes are meet to each other, they produce a xy line and reference line. So when the point lie on any plane, then its top view or maybe its front view lie on the xy line, lie on the reference line. Clear ji? Okay. Now we are talking about next. In the case next problem, he said the point EF और आगे last point दिया है उसने इसी problem का last point the point G. He said the point G. He is talking about the point G and he said the point G in both HP and VP. Okay. What he said? He said the point G in both HP and VP. अब वो कह रहा है point G जो है वो पॉइंट HP और VP दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है ऑन बोथ. तो अब अगर मैं आपको यहाँ ये बोलूँ कि आपने इंडिया और पाकिस्तान में दोनों कंट्रीज में खड़े होना है, स्टैंड करना है सपोज, तो आप फिर कहाँ पे खड़े होगे? आप कहाँ पे खड़े होगे? बॉर्डर? नो, बॉर्डर का तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है बॉर्डर पे. तो आप कहाँ पे खड़े होगे उस केस में? When you want to stand in India and in Pakistan both at same time, it means then you will stand on the LOC line of control. जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है वो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल. अगर आप LOC पे खड़े हो then you definitely touch with the India and also with the Pakistan. Clear? So it means in that case in the quadrant model, what is your LOC? In our quadrant model, the LOC is what? In the quadrant model, the LOC is what? In our quadrant model, the LOC is our XY line. LOC is our XY line. So it means when your point lie on the XY line. अब अगर पॉइंट आपका XY लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, if now your point lie on the XY line, it means then that lie on both planes. ठीक है, तो वो HP को भी टच कर रहा है और VP को भी टच कर रहा है प्रैक्टिकली. क्लियर? सो इट मींस इन दैट केस यू ड्रॉ योर पॉइंट ऑन द XY लाइन. तो आपका पॉइंट XY लाइन के ऊपर ही लाई करेगा. इन दैट केस योर पॉइंट लाई ऑन द XY लाइन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट G. Point G, it means your point lie on G XY line. But in that case, which one is front view and which one is top view? अब यहाँ पे लाई तो कर गया, XY पे लाई ऑन बोथ है, तो XY पे लाई तो कर गया. बट इस केस में आपका फ्रंट व्यू कौन सा होगा और टॉप व्यू कौन सा होगा, ये बात देखने वाली है. कुछ बुक में इसको गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब G डैश और G को गलत जगह पे रिप्लेस किया हुआ है. ये बात आपने सोच समझ के दिमाग में रख के इसको G डैश और G को रिप्लेस करना है कि कहाँ पे करोगे. इट मीन्स व्हेन ही सेड योर पॉइंट लाई ऑन बोथ, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? द मीनिंग ऑफ दैट लाई ऑन, स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑन. ऑन मीन्स जहाँ पे ऑब्जर्वर है, जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, वहां से वो पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्लियर कट नजर आ रहा है. इट मींस दैट इज ऑन. तो इस क्वाड्रेंट मॉडल में ऑन की पोजीशन कहाँ पे है? ऑन की पोजीशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ऑब्जर्वर ने इधर से देखा तब भी क्लियर कट दिख रहा है उसको फ्रंट व्यू, टॉप से देखा तब भी क्लियर कट दिख रहा है. अगर सपोज वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता पॉइंट, तब भी लाई ऑन XY तो होता, बट तब क्या होता? बिहाइंड ऑन एंड बिलो ऑन. सेकंड में होता तो बिहाइंड ऑन एंड ऑन HP एंड बिहाइंड ऑन VP. थर्ड में होता तो ऑन HP एंड बिहाइंड एंड ऑन ऑन VP एंड बिलो ऑन HP होता. इट मींस हमारे पास एक ही कंडीशन है जहां पे पॉइंट दोनों तरफ से ऑब्जर्वर को क्लियर कट एज ए ऑन नजर आ रहा है. क्लियर? ऑन मींस दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. So as per the first quadrant, we know the front view is always above XY line and the top view is always below XY line. So due to that, the G dash is upper and only G is lower side. So you locate here G dash upper and G is lower side. वैसे तो आप G dash ऊपर नीचे भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर टीचर आ गया जिसको प्रॉपर नॉलेज है ड्राइंग की, तो वो फिर ये जरूर देखेगा कि आप फ्रंट व्यू कहाँ लोकेट कर रहे हो इस केस में
और टॉप व्यू कहाँ लोकेट कर रहे हो। क्लियर। सो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट lie on both, it means it lie in first quadrant or as per the first quadrant condition that seen from the observer's side clear cut front view as well as top view. So due to that in the first quadrant the front view are always above xy line and the top view always below xy line. Clear. So you can locate g dash upper side and g is lower side. Clear. So this is the A to G. We have the different 7 problems as per the problem number first textbook P.S. Gill. Clear? Okay. So now we are talking about the problem number second first. तो जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन थी, जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट गिवन थी, सेकंड प्रॉब्लम में सेम ऐसे हमें फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है, and we see the diagram and we see the different position in that diagram and we make the statement. तो मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इजीली आप बना लोगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम में कहीं भी दिक्कत आती है सेकंड प्रॉब्लम में, then you can contact on my mobile number 9417199660. So this is my personal WhatsApp mobile number. You can text me on that number, you can message me on that number on my as a text message or as a WhatsApp message, or you can talk about any point about the engineering drawing with me if you have any problem. Clear? Okay. So we go on the problem number third. Now in the third problem he said in the third problem the point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. As per the problem number third, P.S. Gill, the chapter projection of point, he said the point A is 20 mm above HP as well as 30 mm in front of VP. So when he said about the point, it means locate the point, position of that point. It means firstly we draw the XY line, then secondly we draw the projector as per the projection of point already we discussed in the yesterday lecture. So in that case he said the point A is 20 mm above HP. A is 20 mm above HP. अब अगर आपका point A वो बोल रहा है कि A is 20 mm above HP, तो it means and he said 30 mm in front of VP, so it means that is definitely lie in the first quadrant. Definitely lie in the first quadrant. Because as per the first quadrant we have the position above HP, he said that is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. It means this is your point, this is your target. तो आपने अगर प्रॉब्लम नहीं समझ आती तो आपने रफ में इसको फ्री हैंड ऐसे फटाफट बना के देख लेना क्वाड्रेंट मॉडल में कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा फिर भी कि कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्वाड्रेंट मॉडल नहीं होगा, एग्जाम में आपके पास क्वाड्रेंट मॉडल नहीं होगा. सो ही सेड द पॉइंट A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. It means it's like first quadrant, or as per the first quadrant when observer seen from right hand side, then the point is 20 mm above HP and we show on that projector the point A dash front view that is 20 mm above HP. Clear? And when he said the point is 30 mm in front of VP, when he see from top and that 30 mm in front of VP lie on HP, and after taking the projection on HP, when we rotate the HP into clockwise direction, then that 30 is below. So it means that is 30, that is below HP, this one is 30. And he is talking about the point A, so due to that A dash is here and A is here, it means front view is here and top view is here. So if the front view is above and the top view is below, then your object lie in which quadrant? First quadrant. So it means this is the first angle projection. Your point A lie in the first angle projection as per the statement. Clear? And after that he said about the point B. He said the point B is 25 mm below HP and 40 mm behind VP. He is talking about the point B, 25 below HP and 45 mm behind VP. It means that is the condition of the third quadrant. 25 below HP. See, 25 mm below HP and
40 mm behind VP. So this is the condition of your third quadrant. Your point locate here, 25 below HP and 40 mm behind VP. So it means when he is talking about the below HP and behind VP, it means that is he is talking about the third quadrant. So point तो हमने locate कर लिया, but यहाँ पे हमने इनने problem where we located, क्योंकि पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्टर। तो अभी तक तो हमने एक ही प्रोजेक्टर ड्रॉ किया था एक्स वाई पे, जिस पे फर्स्ट पॉइंट लोकेट कर दिया। सो अब 25 बिलो एचपी और 40 mm बिहाइंड वीपी जो है उसको किस प्रोजेक्टर पे लोकेट करें, और वो प्रोजेक्टर कितने डिस्टेंस पे रखें फर्स्ट प्रोजेक्टर से लेके सेकंड प्रोजेक्टर तक। फॉर फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टर, अगेन वी रीड द प्रॉब्लम। ही सेड the point B is for 25 mm below HP and 40 mm behind VP, and he said in the problem the end projector for those points are 40 mm apart। तो आपने घबराना नहीं है कि प्रॉब्लम पढ़ के कि उसने प्रोजेक्टर तो दिया नहीं है, प्रॉब्लम को आप अगेन आगे रीड करोगे। एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही सेड द एंड प्रोजेक्टर इज 40 mm apart। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में इन द यस्टरडे लेक्चर में डिस्कस द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर इज 20 mm अपार्ट, इन दैट केस ही से द एंड प्रोजेक्टर इज 40 mm अपार्ट। इट मींस प्रोजेक्टर जो बी है उसका फर्स्ट प्रोजेक्टर से जो डिस्टेंस है वो 40 mm है, दोनों प्रोजेक्टर का आपस में। वी हैव द फर्स्ट प्रोजेक्टर इज हियर and the second projector is here, so the difference between the first and second, that is 40 mm apart, he is talking in the problem. Clear? So he is given in the statement. So we draw the first projector is here, and after the first projector we want to locate the second projector, and what he distance said, he said that is the 40. So now the distance between the first projector and second projector, now what, that is 40 mm apart। और आल्सो शो विद द डायमेंशन, याद रखना स्टेटमेंट में जितनी भी डायमेंशंस हैं यू शुड शो विद द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट में जो भी आपकी डायमेंशंस हैं ऑलवेज शो ऑन द प्रॉब्लम ऑन द ड्राइंग। क्लियर? सो दैट इज 40 mm अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्रोजेक्टर। ओके, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट बी एंड ही सेड द पॉइंट बी इज 25 mm बिलो एचपी। अगर आपका पॉइंट बी जो है वो 25 mm below HP अगर hang कर रहा है, if your point B and that is hanging the 25 mm, now what, that is hanging the 25 mm below HP, it means अगर आपका ये HP है तो HP से नीचे 25 ऐसे hang कर रहा है वो point, the point B is 25 mm below HP hanging like this। clear? तो वो hang कर रहा है तो ऑब्जर्वर को कहाँ से दिखा, वो फ्रंट से on the vertical plane। clear? So he is talking about the point B, then definitely locate on the point on the B projector, and that's at 25 mm below HP। so this is your point B, suppose, and measure the distance from the XY to this point, that is how much, 25, because यहाँ HP खत्म हो रहा है, पीछे कौन से प्लेन से मीट कर रहा है, वो XY से। so now this is the reference plane XY, and the distance from the XY now, that is 25, that is how much, 25 below HP like this। and he said that is your point is 40 mm behind VP, 25 below HP था, इसका फ्रंट XY पे प्रोजेक्टर के ऊपर वर्टिकल प्लेन पे तो दिख गया, in the front view now on the projector here 25 below on which plane, and that is which view now, he is talking about the point B, so B dash, and that is front view on which plane, VP, vertical plane पे दिखाई। now he is talking about point B and that is 40 mm behind VP, 40 mm VP के पीछे है इधर, तो 40 mm VP के पीछे है, तो इसका टॉप व्यू कहाँ दिखा, its top view lie on the HP horizontal plane, and when we rotate the HP into clockwise direction like this, तो ये 40 mm डिस्टेंस जो है ये अब ऊपर चला गया, this 40 mm डिस्टेंस now that is above। क्लियर? तो ये 40 डिस्टेंस हमने ऊपर लोकेट कर दिया like this, so this is 20 suppose, and the 40 suppose is here, 40 is here suppose, so that is 40। clear? and that distance seen from which view now, this distance seen from which view, top view, so the top view point we always noted it, the top view point is always noted without
dash and he is talking about the point B and that is its top view. टॉप व्यू चला गया हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये किस व्यू का पॉइंट था, HP का था, ये HP का था जो हमें यहाँ पे दिखा, ठीक है। HP में प्रोजेक्शन की और HP को रोटेट किया तो ऊपर चला गया। रोटेट कैसे करते हैं हम, where the both planes are hinged, याद रखना, rotate from where the both planes are hinged and both planes HP as well as VP hinged where that is XY लाइन पे हिंज है। तो XY से लेके 40 तक हमने कंपास को ली और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है एंड वी रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपर साइड लाइक दिस। तो ये पॉइंट 40 आपका ऊपर आ गया। तो सेम आपको ये 40 पॉइंट जो है ऊपर नजर आया एंड दैट इज पॉइंट बी। क्लियर? So you locate the point B on the other projector and distance between one to other projector that is 40 mm apart as per the problem. Clear? After that what he said, problem के पीछे आपने चलते जाना है। जैसे जैसे प्रॉब्लम में पूछता है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप लाइक ए मैथमेटिक्स आपने इसको प्रॉब्लम को ड्रॉ करते जाना है और एंड पे देखोगे यू कैन इजीली ड्रॉ द फुल प्रॉब्लम। अगर सारी प्रॉब्लम आप एक ही बार ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इकट्ठा प्रॉब्लम को पढ़ के सोचोगे कि एक ही बार ड्रॉ कर दूं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इफ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑन दैट सब्जेक्ट। क्लियर? तो प्रॉब्लम के लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपने पीछे चलते जाना है और जो जो पूछा है साथ साथ ड्रॉ करते जाना है जैसे जैसे मैं करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट ही सेड व्हाट, देन ही सेड इन द स्टेटमेंट ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। इट मींस अगर हमने इतना काम कर दिया तो हमने पॉइंट्स की प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस प्रोजेक्शन में हमने ये फाइंड किया कि इन द फर्स्ट प्रोजेक्टर योर पॉइंट लाई इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड इन द सेकंड प्रोजेक्टर योर पॉइंट लाई इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो इसमें पॉइंट बी जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लाई कर रहा है और पॉइंट ए आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लाई कर रहा है। और अगेन सी इट, because in the first angle projection the front view always above xy line and the top view is always below xy line, and in the third angle the top view is always above and the front view is always below, so that is reverse, vice versa, reverse, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होंगे ये projections। clear? So after that in the problem draw the projection of the points, हमने projection point की draw कर दी and he said find the length of the front view and top view of a line joining the point A and B। The end answer उसने पूछा कि उस लाइन की आप लेंथ बताओ जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के A and B पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब यहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि किस पॉइंट को किससे मीट करें और किसकी लेंथ मेजर करें। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्रंट व्यू A and B, डेफिनेटली देन टॉप व्यू A and B। तो फ्रंट व्यू का A and B कहाँ पे था, यू कैन सी हियर, नाउ दिस इज योर एंड आंसर। तो मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। So here is your front view point. So A dash is here and B dash is here. So what is the line? Line A is there. What is the line? That is from A to B. That is a line A to B. So A फ्रंट के पॉइंट को फ्रंट से मीट करोगे, जिस कैटेगरी का पॉइंट है उसी से मीट करेंगे। सो इसलिए फ्रंट के A डैश को टॉप के B डैश से हमने पहले मीट करवाया। सो A डैश टू B डैश। So we can meet this A dash to B dash a line and measure that line A dash to B dash, and you can write here in the answer front view length, that is under bracket A dash to B dash, you can measure it A dash to B dash, suppose when you measure A dash to B dash, suppose that is 52 mm, so you can write here 52 mm। clear? Again he said the top view point A and B, so top view का point A ये था और टॉप व्यू का पॉइंट बी ये था। तो हमने ये ऊपर नीचे क्यों मिला रहे हैं, बिकॉज लाइन इज व्हाट, लाइन ए टू बी। तो जिस कैटेगरी का पॉइंट है उसी कैटेगरी से मिलेगा। टॉप का पॉइंट है तो टॉप के बी, टॉप का ए पॉइंट है तो टॉप के बी से ही ये मीट करेगा, तभी वो लाइन को प्रॉपर ड्रॉ करेगा। क्लियर? सो यू कैन मीट हियर ए टू बी लाइक दिस। तो आप इसको ए से बी के साथ में ये मीट करोगे। क्लियर? ए टू बी। So you can meet this A to B and you can measure the length A to B and write in the statement, write in the answer top view length, that is what A to B, or you can write here that is for 65 mm. So this is the answer of your statement. Clear? तो ये आपकी स्टेटमेंट का आंसर रहेगा
and in the end answer he said find the length A to B front view and top view. तो फ्रंट व्यू का पॉइंट A डैश B डैश को मीट कर दिया, टॉप व्यू का पॉइंट A और B को मीट कर दिया और इनकी लेंथ मेजर कर दी एंड राइट इन द आंसर. Clear? Under the guideline, capital letter as per the technical letters rules. Clear? So you can draw it easily. This problem number 3rd as per the P.S. Gill chapter projection of point. Clear? So now we are talking about the next problem number 5th. In the next problem he said again the point A is 20 mm above HP and 40 mm and now he said that is 30 mm in front of VP. 20 mm above HP and 30 mm in front of VP. It means definitely the point again lie in which quadrant? First quadrant, above HP and in front of VP. So it means 20 और 30 है तो सेम जैसे हमने ये पहली प्रॉब्लम ड्रॉ की थी सेम वैसे ही ये 20 और 30 हमारे पास दोनों पॉइंट आ जाएंगे and that lie in which quadrant? Now that lie in that lie in which quadrant? Now that lie in first quadrant. So you can draw like this. Clear? And now he said about the distance between end projector. End projector की distance अब हमने पहले projector के point A और B मार्क कर दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम एज इट इज आएंगे. अभी हमें ये नहीं पता कि end projector कितना है और दूसरे पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे और end projector का डिस्टेंस भी नहीं पता अभी हमें. So again read the problem what he said. He said the point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP and the B is in HP. Yes, now he said the B in HP and 40 mm behind the VP. Okay, now he said B in HP, B in HP and 40 mm behind the VP. तो बच्चे ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? When he said the B is in HP and 40 mm behind the VP, that lie in which quadrant now? Please tell me. Now when he said the point B in HP and 40 mm behind VP, so definitely it lie in the second quadrant. It lie in the second quadrant. Again draw it. So in HP है तो जा तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा. क्यों? इन HP और ऑन HP का मतलब है कि जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है क्लियर कट वो पॉइंट नजर आ रहा है. तो इट मींस इन HP है तो टॉप से नजर आएगा वो HP का पॉइंट. तो क्लियर कट वो टॉप से नजर आ रहा है तो वो टॉप से अगर इन HP है तो यहाँ अगर चला गया थर्ड में फोर्थ में या थर्ड में तो वो बिलो ऑन HP हो जाएगा. तो इन HP है तो इट मींस इट मे बी लाइंग फर्स्ट और मे बी इन सेकंड. अब वो फर्स्ट में लाई कर रहा है या सेकंड में लाई कर रहा है? अब वो फर्स्ट में लाई कर रहा है या सेकंड में लाई कर रहा है? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर वो पॉइंट हमने देखना है कि इट लाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, सो फॉर फाइंड आउट दैट पॉइंट व्हाट वी डू नो, उसको देखने के लिए हम स्टेटमेंट को आगे पढ़ेंगे. स्टेटमेंट में आगे दे रहा वो द पॉइंट A is A 20 mm सॉरी B की बात कर रहे थे. द B in HP and 40 mm behind VP. Now he said the B in HP and 40 mm behind the VP. It means definitely when he said that is 40 mm behind VP, definitely that lie in the second quadrant. Definitely that lie in the second quadrant. Now this is the position of your point, that is 40 mm behind VP and on HP or maybe in HP. That is 40 mm behind VP and on or in HP. तो अब अगर आपका पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है प्रैक्टिकली ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा इधर से राइट हैंड साइड से, then where its front view lie on the XY line. Its front view lie on the XY line because it lie on the HP. XY लाइन पे ऊपर क्यों? क्योंकि XY लाइन की और पॉइंट की दोनों की थिकनेस हम सेम अज्यूम करते हैं क्योंकि इसी मार्कर से आप सपोज पॉइंट लगा रहे हो और इसी मार्कर से लाइन लगा रहे हो, या इसी पेंसिल से आपने डॉट लगाया और इसी पेंसिल से आपने लाइन लगाई, तो दोनों की पॉइंट की और लाइन की थिकनेस सेम है. इसलिए ड्यू टू दैट इफ द पॉइंट लाई ऑन HP और मे बी ऑन VP, देन इट्स फ्रंट और मे बी टॉप व्यू ऑन द XY लाइन. ओके, now he said the point on HP
ऑन एचपी एंड 40 mm बिहाइंड वीपी, 40 mm वीपी के पीछे है। तो टॉप से देखा तो उसका फ्रंट व्यू एचपी पे दिखा, और एचपी को जब क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 40 ऊपर चला गया। सो इट मींस इन द केस द पॉइंट इज 40 mm what, द पॉइंट इज 40 mm above, 40 mm above एचपी। तो 40 mm एचपी के ऊपर तो गया, लेकिन अभी हमने डिस्टेंस नहीं देखा था, कितना था एंड प्रोजेक्टर का। एंड ही सेड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर इज 50 mm। नाउ ही सेड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर, फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्टर के बीच में का डिस्टेंस कितना, 50। तो फर्स्ट प्रोजेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, फिर सेकंड प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, और पॉइंट ऑन एचपी था, ड्यू टू दैट इट्स फ्रंट व्यू लाई ऑन where xy line now, and that is he is talking about the point B suppose, so that is B dash, front view on xy, and he is talking about the point is 40 mm behind VP। तो 40 टॉप से HP पे दिखा, HP को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो 40 ऊपर चला गया, so the 40 is here, so that is which view, that is the B and this is top view। तो ये पॉइंट का कौन सा व्यू आ गया, टॉप व्यू आया। ये व्यू कौन से उसका प्लेन का था, HP का था, लेकिन दिख कहाँ पे रहा है, वीपी पे, बिकॉज रोटेट होके वो वीपी पे चला गया एज पर द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेंट मॉडल। सो इट गोज ऑन वर्टिकल प्लेन, सो व्हेन इट गोज ऑन वर्टिकल प्लेन देन वी लोकेट इट ऑन वर्टिकल प्रोजेक्टर, दैट इज बी डैश। एंड आफ्टर दैट ही सेड, after that what he said in the statement, after that he said join straight line joining the top view and front view। अब वो कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन अगेन पहले प्रॉब्लम की तरह ज्वाइन करो जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को मीट करे। तो फ्रंट व्यू के पॉइंट कौन से हैं, ए डैश, बट नाउ द बी डैश ऑन एक्स वाई। तो ए डैश और बी डैश को हमने मीट कर दिया, ए डैश टू बी डैश, एंड टॉप व्यू के पॉइंट थे ए टू बी, तो ए टू बी को हमने मीट कर दिया like this। So meet the A to B and A dash to B dash, but in that case he never asked what is the front view and top view length। तो यहाँ पे स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग में उतना ही काम करना है, याद रखना ड्राइंग में उतना ही काम करना है जितना स्टेटमेंट में उसने पूछा है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी लेंथ A dash to B dash और A to B मेजर करके लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कंफ्यूजन फॉर द एग्जामिनर। एग्जामिनर देखेगा कि मैंने स्टेटमेंट में तो ये पूछा नहीं तो इसमें लिखा क्यों। तो पिछली स्टेटमेंट में उसने पूछा था व्हाट इज द लेंथ A dash to B dash and A to B, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू लाइन। सो यू कैन मेजर एंड राइट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, बट इन दैट प्रॉब्लम ही नेवर आस्क्ड what is the length front view and top view। so if you never ask in the problem then never measure and never write it। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सिर्फ उसने यही कहा join the line front view as well as top view, so meet it A dash to B dash and A to B, that's all। इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, इसके अलावा आगे नहीं करना। फिर मैं कह रहा हूँ ड्राइंग में उतना ही काम करना है जितना आपको स्टेटमेंट में बोला गया है, अदरवाइज दैट इज कंफ्यूजन फॉर द एग्जामिनर कि मैंने तो ये पूछा नहीं था तो ये मेजर करके लिख क्यों रहा है स्टूडेंट। क्लियर, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 5, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन दैट प्रॉब्लम ही सेड a point C 15 mm above HP and that is 45 mm in front of VP। He said that is 15 mm above HP and 45 mm in front of VP। It means definitely in that case he is talking about what? He is again talking about the first quadrant। Clear? He is talking about the first quadrant। ठीक है, इस केस में आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बिकॉज ही सेड 15 mm from HP, he said 15 mm from HP, he said above HP, he said 15 mm above HP and 40 mm above HP and 40 mm from VP। ठीक है, 15 mm above HP and 40 mm from VP। okay, now see this condition again। he said your point 15 mm above HP, clear, definitely then your point। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझना है, ठीक है। कुछ बुक ने ये प्रॉब्लम एक ही स्टेटमेंट में ड्रॉ की है, एक ही फिगर में ड्रॉ किया है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये स्टेटमेंट दो फिगर में ड्रॉ होनी चाहिए थी। क्यों? सी इट। ही सेड
the point C, he set the point C 15 mm above HP, and that is how much? That is 45 mm in front of VP. Definitely it lie in the first quadrant. Definitely it lie in the first quadrant. 15 mm above HP, and he said 45 mm in front of VP. It means the point lie in first quadrant. ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को. It means as per that is 15 mm above HP. तो ऑब्जर्वर ने इधर से देखा तो फ्रंट व्यू इसका एक्स वाई के ऊपर ही चला गया. सपोज दैट इज मैं इसी को 20 को 15 मान लेता हूँ, 15 और 30 को 45 मान लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो दैट इज 45. सो द पॉइंट इज 15 mm, not 15 mm above HP and 45 mm in front of VP. Due to that, he is talking about the point C. So C dash here, front view is here, and the top view is C is here. Clear? So locate that point. Okay. Clear? Locate that point. Okay. Now he said above HP and in front of VP. Okay. Above HP and in front of VP, definitely it lie in the first quadrant. ठीक है? In front of VP बोल दिया इसने, फॉर्म नहीं है. In front of VP, definitely that is in first quadrant. Okay. So इस केस में ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई होगा. Now he said in that statement he said इन, ध्यान से समझना ये आगे वाला पॉइंट वो क्या कह रहा है. इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम दो तरह से ड्रॉ होनी चाहिए थी. तो वो आगे वाली लाइन में क्या कह रहा है? इन व्हाट क्वाड्रेंट एंड अदर पॉइंट डी लाई. वो कह रहा है अदर पॉइंट जो डी लाई है वो ढूंढो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इन व्हाट क्वाड्रेंट द अदर पॉइंट डी लाइज इफ द डिस्टेंस of the vertical projection of C through D be equal to 60 mm. अब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना. अगेन आई रिपीट. इन व्हाट क्वाड्रेंट एंड अदर पॉइंट D lie if the distance between vertical projections, उसने वर्टिकल प्रोजेक्शंस की बात की है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ C and D be equal to 60 mm. Clear? And the distance between the projector through C and D is 40 mm. Clear? And he said, lastly he said, and the point D is 40 mm in front of VP. Clear? अब सबसे पहले पॉइंट D तो उसने कह दिया कि 40 mm in front of VP है. The point C की बात हमने कर दी थी. अब now we are talking about point D, and he said the point D is 40 mm in front of VP. Okay, 40 mm in front of VP. तो D point definitely ऐसे चला गया. तो ये D 40 mm in front of VP यहाँ पे है जो फ्रंट व्यू से नजर आया. क्लियर? बट उस D को लोकेट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्टर का, अब ध्यान से समझना, उस D को लोकेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस कितना रखेंगे. अब इस स्टेटमेंट में उसने दो डिस्टेंस दिए हैं, C थ्रू D. याद रखना, द डिस्टेंस C थ्रू D पहले वो बोला है 60 mm और फिर वो कह रहा है द डिस्टेंस C थ्रू D दैट इज 40 mm अपार्ट. तो ये दोनों डिस्टेंस में डिफरेंट समझना है. स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज देयर. पहले डिस्टेंस में वो क्या कह रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो जरा. पहले डिस्टेंस में वो क्या कह रहा है, सॉरी पहले डिस्टेंस में कह रहा है इन व्हाट क्वाड्रेंट एंड अदर पॉइंट डी लाई इफ द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल प्रोजेक्शंस. ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल प्रोजेक्शंस, नॉट ए वर्टिकल प्रोजेक्टर. स्टूडेंट प्रोजेक्शंस और प्रोजेक्टर दोनों को सेम समझ लेते हैं. दैट इज रॉन्ग. प्रोजेक्शन इज द डिफरेंट थिंग एंड प्रोजेक्टर इज द डिफरेंट थिंग. अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टर एंड प्रोजेक्शन. ध्यान से समझना. यहाँ पे सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे आपका सपोज पॉइंट लाई कर रहा है आपका पॉइंट C.
दैट इज 15 mm above HP. C is here. और यहाँ पे पॉइंट आपका D लाई कर रहा है. D is here. C is here. C on the tip of the red cap here, and D is on the tip of black rod, and that is the white tip, that is D. So C is here and D is here. So this distance, ये जो मार्कर का डिस्टेंस बन रहा है ऐसे इंक्लाइन डिस्टेंस जो मार्कर का मैं शो कर रहा हूँ, this inclined distance from C to D, that is the projections, that is the projections distance. ध्यान से सुनिए. And this horizontal distance, ये जो horizontal distance बन रहा है ये वाला, this horizontal, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो यस ये मैं ले लेता हूँ पहले ले लेता हूँ. तो ये जो पेन का horizontal distance बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक C through D, this is the projector distance. ये C का प्रोजेक्टर चल रहा था क्योंकि, और ये D का प्रोजेक्टर चल रहा था. So that horizontal distance is the projector distance, and that inclined distance is the projection distance. So this is the difference between projection and projector. Clear? तो वो कह रहा है स्टेटमेंट में the distance projector distance C through D, that is what, that is C through D, the projection distance, that is 40 mm. So C से D का प्रोजेक्शन का डिस्टेंस वो कह रहा है 40 है. तो इट मीन्स अब ये जो डिस्टेंस C से प्रोजेक्टर से लेके D प्रोजेक्टर तक आपने जो लोकेट किया, that distance is 40. He is talking about that distance, and that is 40 distance. Clear? And now he say, listen. He said the distance from the projections C through D, that will be equal to 60. तो हमने उस केस में क्या कहा कि इंक्लाइन डिस्टेंस था वो प्रोजेक्शन डिस्टेंस. तो इसलिए हमने क्या किया कि C से लेके हमने D तक कंपास हमने ओपन की 60. So we open the compass from C to D, that is how much, 60, and we fix on C, and we open the compass, I again repeat, we open the compass, that is C to D, that is 60, because that is the projection distance. तो मैंने C से लेके D तक 60 mm compass open की, and we fix on the point C and make the arc with that compass, basically make the arc with that compass, and where it cut on the projector, definitely there locate the point D. Definitely there locate the point D, because he said the distance from the C through D, that is how much? He said that is 60. That is 60. तो डेफिनेटली मैंने C से D तक ये जो डिस्टेंस बन रहा था इंक्लाइन डिस्टेंस मेरे पास ये 60 बन गया, और मैंने C पे फिक्स करके उस कंपास की एक आर्क कट की, और वो आर्क डेफिनेटली जहाँ पे D प्रोजेक्टर को कट करेगी वहाँ पे पॉइंट D लोकेट हो जाएगा. क्लियर? बिकॉज ही सेड द डिस्टेंस फ्रॉम द C थ्रू D, it will be equal to 60. प्रोजेक्शन डिस्टेंस 60. ओके. लेकिन उसने स्टेटमेंट में ओके ये बोला कि D यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, C थ्रू D. तो डेफिनेटली अगर ये हमारे पास क्या हुआ, ये C थ्रू D डैश हो गया, ठीक है. अगर ये D डैश है तो उस केस में हमारे पास फिर क्या हुआ, अगर ये D डैश है तो अभी हमें ये नहीं पता, वैसे अभी मैं डैश नहीं लोकेट करूंगा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये D डैश है या D टॉप है. इट मींस ये नहीं पता कि ये वाला D फ्रंट व्यू है या अभी ये टॉप व्यू है. अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि दैट D इज फ्रंट व्यू और एज वेल एज टॉप व्यू. अब देखने के लिए कि वो D फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू है, तो हम स्टेटमेंट को अगेन आगे पढ़ेंगे. स्टेटमेंट में आगे लास्ट में वो क्या कह रहा है, लिसन. इन द लास्ट ही सेड the projections C through D, the projector C through D will be 40 mm at the point D. Now in the last line of that statement he said at the point D is 40 mm in front of VP.
अब वो कह रहा डी जो है 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो इट मींस डेफिनेटली इफ वी सेड डी इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो इट मींस दैट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट 40 mm in front of D है तो it lie in first quadrant suppose if that is lie in first quadrant तो टॉप से देखा हमने 90 डिग्री तो ये 40 HP पे आ गया, D यहाँ पे आ गया और XY यहाँ पे है, तो XY से D तक कंपास खोल के जब हम रोटेट करेंगे HP को क्लॉकवाइज तो फिर D कहाँ चला गया नीचे, तो इट मींस यहाँ पे हमें D सपोज यहाँ पे दिख गया नीचे और ये D जो हमें नीचे दिख रहा था 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो ये D हमें कहाँ से दिखा था टॉप से, तो डेफिनेटली टॉप का ये टॉप व्यू एचपी पे आ गया डी और रोटेट किया तो नीचे चला गया, तो अगर ये टॉप से देखा था तो ये डी क्या हुआ टॉप व्यू, तो अगर ये डी टॉप व्यू है तो दूसरा डी डेफिनेटली क्या हो जाएगा फिर फ्रंट व्यू, दूसरा डी डेफिनेटली क्या हो जाएगा फ्रंट व्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लाई कराया है डी को, इसलिए वी ऑलरेडी कवर if the D lie in first quadrant then the front view always above xy line and the top view is below xy line as per the concept of your quadrant model. Clear? Okay, तो up to here ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, लेकिन I am not again agree कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ऐसे ही सॉल्व होगी, ये प्रॉब्लम दूसरे स्टेप में भी सॉल्व हो सकती थी। क्यों? ध्यान से इस चीज को देखो, इसलिए हो सकती थी बिकॉज he said what he said the point C और D का जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को दोबारा हम पढ़ते हैं एक बार देखो, he said a point C is 15 mm above HP and 40 mm in front of VP इन व्हाट क्वाड्रेंट, क्योंकि उसने ये यहीं पे पूछ लिया है कि इन व्हाट क्वाड्रेंट एंड अदर पॉइंट डी लाई इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल प्रोजेक्शन सी थ्रू डी विल बी इक्वल टू 60, वर्टिकल प्रोजेक्शन का डिस्टेंस 60 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर सी इज 40 mm, ठीक है, और डिस्टेंस एंड प्रोजेक्टर का 40 mm है एंड द डी इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP और D वो कह रहा है कि 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP लाई कर रहा है। अब लास्ट की लाइन पे स्ट्रेस दो, he said the D is 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो अगर वो कह रहा है कि D 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो D 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता था, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट की कंडीशन है, फर्स्ट की भी इन फ्रंट और इसकी भी इन फ्रंट है, तो D 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP यहाँ भी तो हो सकता था, क्योंकि उसने इस स्टेटमेंट में ये नहीं बोला कि D इज हाउ मच अबव HP, उसने प्रोजेक्शन C थ्रू D का डिस्टेंस दिया, सिर्फ उसने प्रोजेक्शन C थ्रू D का डिस्टेंस दिया, लेकिन उसने ये नहीं बोला that D is how much above HP and how much below HP. So it means as per my view that problem can be lie in the that D can be lie in the fourth quadrant, और अगर ये D फोर्थ क्वाड्रेंट फर्स्ट की जगह, अगर ये फर्स्ट की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता तो ये प्रॉब्लम फिर दूसरी तरह से ड्रॉ होगी। कैसे? अगर वो हम फोर्थ में लाई कराते D को तो डेफिनेटली उस केस में भी टॉप व्यू देखते यहाँ से टॉप से तो D फिर हमें HP पे दिखता और फिर रोटेट करते तो D फिर नीचे यहीं पे जाता। इट मीन्स चाहे ये D फर्स्ट में लाई करता चाहे ये D फोर्थ में लाई करता, दोनों केसेस में ही टॉप व्यू यही बनता, दोनों केसेस में ही टॉप व्यू यही बनता। बट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट टॉप व्यू तो यहाँ बनता, बट वी नो एज पर द क्वाड्रेंट मॉडल, concept of quadrant model, we know in the fourth angle projection the both view are below xy, तभी तो ओवरलैप होते थे वो, both view are below xy। तो अगर ये D फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये फिर टॉप फ्रंट व्यू ऊपर नहीं आना था, ये फ्रंट व्यू डेफिनेटली ऊपर नहीं आना था बिकॉज फ्रंट व्यू भी बिलो xy आना था। तो उस केस में क्या होता, लिसन, अब इसको क्या करोगे, इसको पहले तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे D इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अज्यूम करके और यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट के प्रॉब्लम के नीचे इन दैट केस आई अज्यूम द D लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही बन जाएगी। फिर सेकंड केस में लिखोगे इन दैट केस
I assume D lie in not first quadrant, D lie in fourth quadrant. I assume D lie in fourth quadrant. तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बनेगी? टॉप व्यू तो यही बात है, यहां तक डिस्कस कर चुके थे. एंड वी नो व्हाट वी नो द फ्रंट व्यू ऑलवेज बिलो XY लाइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फिर हम उतनी कंपास C से D उतनी ही कंपास खोलते और C पे फिक्स करते, लेकिन फिर हम अबव XY नहीं कट करते. उस लाइन को अब हम क्या करते, उस लाइन को हम बिलो XY कट करवा देते उस आर्क. तो बिलो XY जो रेडियस 60 जहां भी कट करता उस केस में वहां डेफिनेटली D का प्रोजेक्टर है तो D लोकेट हो जाता. तो उस केस में D डैश आपका फ्रंट व्यू यहां लोकेट होता. क्लियर? और इस केस में आप लिखते हैं इन दैट केस द D lie in fourth quadrant. So as per my view this problem can be drawn in two different views. In the first view we assume the D lie in first quadrant, and in the second view we can assume the D lie in fourth quadrant. Why so? Because in the statement he said the D is in front of VP, but he not said the D is how much above HP or maybe how much below HP. It means in that statement he never talked that D is below HP or D is above HP. Okay? एक चीज और स्टूडेंट को यहाँ एक चीज और प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक पहुंच के भी उसके दिमाग में फिर ये चीज आती है कि ओके D अगर ऊपर लाई कर रहा था यहाँ पे तो ठीक है, हमने ये वाला C फ्रंट व्यू का फॉलो किया. अब D यहाँ लाई कर रहा है तो हमने ये वाला C फॉलो क्यों नहीं किया? मींस हमने आर्क इस तरफ से ऐसे क्यों नहीं कट करवाई, ऐसे आर्क क्यों नहीं कट करवाई? हमने यही वाला, अब D यहाँ नीचे मिल रहा है तो फिर भी हमने ये फ्रंट वाला C ही क्यों फॉलो किया? स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है अगर वो सोचेगा कि हमने, अगर मेरे में तो आया था जब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ठीक है, तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे ये फॉलो कराने के लिए नीचे वाला C क्यों नहीं फॉलो किया? उसके लिए अगेन स्टेटमेंट को रीड करेंगे हम. स्टेटमेंट में उसने दिया है द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल प्रोजेक्टर्स. ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल प्रोजेक्शंस C थ्रू D. अब वो वर्टिकल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है. अगेन आई रिपीट, ही इज टॉकिंग इन द प्रॉब्लम द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल प्रोजेक्शंस C through D will be equal to 60. तो 15 mm above HP. अब ध्यान से देखना इस चीज को. 15 mm above HP, that is what? That is the vertical projector. Vertical projection. 15 mm above HP. ये HP आपका, ये VP है. तो 15 mm above HP, that is what? That is the vertical projection. And 40 mm in front of VP, that is what? This is the horizontal projection. Horizontal projection. And in the statement he said the distance from C through D vertical projection. तो इसलिए D आपका चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, वर्टिकल प्रोजेक्शन आपकी ये 15 वाली ही है. तो इसलिए आर्क यहीं पे लगेगी, चाहे वो नीचे लगे चाहे वो ऊपर लगे. क्लियर? So due to that we picked that C because he said the distance from the vertical projections C through D, not from the horizontal. हाँ, अगर उसने स्टेटमेंट में ये कहा होता the distance from C to D horizontal projection, ठीक है, तो डेफिनेटली ये 40 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थी, तो उस केस में वो 60 आर्क आपकी ऊपर लगती तब भी इधर लगती और इधर लगती तब भी इधर लगती. क्लियर? बिकॉज इन दैट केस he fixed the horizontal projections, but in that case he fixed the distance vertical projections. Due to that we follow the upper side C. Clear? Okay, so last problem of this chapter, बस इसके साथ मैं एंड करूंगा. लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की बची, उसको हम भी कवर कर देते हैं अभी साथ ही साथ. ओके, इन द लास्ट प्रॉब्लम व्हाट इज सेड, इन द लास्ट प्रॉब्लम व्हाट इज सेड, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा पहले पार्ट एंड मॉडल के ऊपर आपको समझाने की, मतलब 2D जो ड्राइंग के ऊपर जो पार्ट एंड मॉडल है उसके ऊपर समझाने की मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ पहले आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए ये चीज़. ठीक है, उसके बाद हम उसको कैसे ड्रॉ करना है फिर ड्रॉ करेंगे. ओके, सो इन द क्वाड्रेंट मॉडल क्या हुआ, सो इन द क्वाड्रेंट मॉडल वी हैव हियर HP एंड हियर वी हैव द VP. बस ओनली 5-6 मिनट्स मोर.
5-6 मिनट और लगेंगे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते, इसको भी कवर कर लो ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। सो दिस इज वी हैव एचपी एंड दिस इज वी हैव द वीपी। मैं और ऑब्जर्वर आपका यही राइट हैंड साइड से देख रहा है, क्लियर। एचपी वीपी के अकॉर्डिंग अज्यूम करता हूँ, दिस इज एचपी एंड दिस इज वी हैव द वीपी वर्टिकल प्लेन। ओके, सो इन द स्टेटमेंट व्हाट इज सेड, in the statement he said a point A is 25 mm above HP and in first quadrant, it means अब उसने फिक्स कर दिया है कि पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, बट वो कितने mm above HP है 25। so we make a locus 25 above HP, here is the line point, so okay, so suppose we make with that, so we make मैं थोड़ा यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, सो वी मेक 25 mm। तो अभी इस केस में हमने क्या किया कि हमने 25 अबव HP एक लाइन ड्रॉ कर दी, 25 अबव HP, और इस लाइन को मैं मानता हूँ कि लोकस इज द पाथ ऑफ ए लाइन, जहाँ से लाइन गुजरेगी, एंड लोकस ऑलवेज विद द डबल डैश एंड इट शुड बी थिन लाइन एज पर द concept of types of line. Okay, and he said the point is 25 mm above HP and it lie in first quadrant. Okay, this is your first quadrant and that is 25 mm above HP. So I draw the locus 25 mm above HP, it means above HP line I draw a locus. locus इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि उसने यही दिया है the point is 25 mm above HP, उसने ये नहीं दिया the point is how much in front of VP. सो ड्यू टू दैट पॉइंट आपका यहाँ पे भी हो सकता था, 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 और इवन यहाँ पे भी हो सकता था। सो वी डोंट नो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ योर पॉइंट, दैट इज हाउ मच इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो जब हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, वी कैन फॉलो विद द लोकस फर्स्ट, तो लोकस फॉलो कर दिया हमने, क्लियर। तो इस लोकस के ऊपर कहीं भी पॉइंट हो सकता था, इसलिए 25 पे लोकस फिक्स हो गया। ओके, नाउ ही सेड इन द स्टेटमेंट, he said 25 mm, okay, 25 mm above HP and is in first quadrant. He said its shortest distance from the XY line is 50 mm and draw the plan and elevation. Plan means top view, top view का ही सेकंड नेम प्लान है और एलिवेशन को ही हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात हुई थी, प्लान और एलिवेशन कहाँ से आ गए। प्लान मीन्स हम बोलते हैं ना हमारे घर का प्लान है ना, प्लान मीन्स तो उसमें आपका पूरा घर का मैप कैसे दिखाया होता है, उसकी छतें दिख रही होती है 20x20, 20x15 का रूम है जो भी है, तो दैट इज प्लान। प्लान मीन्स फ्रॉम टॉप व्यू, और एलिवेशन एलिवेट कर रही हो आप, एलिवेट बोलते हैं बिल्डिंग का एलिवेशन है, एलिवेट किया है, तो एलिवेट मीन्स दैट इज द फ्रंट व्यू। सो he said its shortest distance from the XY line, that is 50 mm. So first we look at, here is the position of the XY line in your coordinate model. So in our coordinate model, this is the position of our XY line here, XY line. And he say the shortest distance. अब मेरे पास, अब अगर मैं ये कवर करूँ, suppose आपको ये कवर करने की कोशिश करता हूँ, suppose your point lie here, suppose your point lie here, suppose your point lie here, समझना इस चीज को। Suppose exact position of your point lie here, that is 25 mm above HP, और ये डिस्टेंस नहीं बताया था, that is how much in front of VP. ओके, सो इसको लोकेट करने के लिए हम इसको सारा फंडा कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि सपोज अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स वाई यहाँ पे है, सो वी हैव 3 वे फॉर रीच फ्रॉम द एक्स वाई लाइन टू द पॉइंट। एक्स वाई लाइन से लेके पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 वे हैं। एक वे ये कि मैं यहाँ से ऐसे चला, एक्स वाई से सपोज मैं ऐसे चला और फिर मैं ऐसे यहाँ पे पहुंचा, लाइक दैट, फिर मैंने वर्टिकली टच कर दिया और ऐसे पहुंच गया। दिस इज द फर्स्ट रेड वे, क्लियर, कि मैं पहले यहाँ से एक्स समझना, एक्स वाई से ऐसे चला और ऐसे पहुंचा। और दूसरा मैं ग्रीन पाथ बना देता हूँ, सपोज कि पहले मैं एक्स वाई से ऐसे चला और फिर मैं ऐसे पहुंचा। वी आर द सेकंड वे, वी आर द सेकंड वे, एंड वी नो the diagonally way is always the shortest way. Diagonally way is always the shortest way. You must see the ऐसे चला straight line diagonally.
ऐसे ही करते हो आप, कोई ग्राउंड क्रॉस करते हो सपोज, तो आप क्या करते हो कि ग्राउंड के डायगनली चले जाते हो, एक कॉर्नर से दूसरी तरफ जाना हो, ऐसे तो नहीं चलता कि ग्राउंड के पहले इधर जाओ फिर इधर, ऐसे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली व्हेन वी कवर द डिस्टेंस वी कवर द डायगनली, सो वी नो द डायगनल डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वही वही उसने कहा है, he said in the statements its shortest distance from xy line to that point, that is 50। तो हमने लोकस लोकेट कर दिया 25 पे, फिर हमने 50 का कंपास खोला और xy लाइन के ऊपर हमने कंपास को रखा और हमने 50 का एक आर्क लगा दिया, और वो आर्क जहां पे भी उस 25 वाले लोकस पे कट करेगा डेफिनेटली आपका पॉइंट वहां पे लोकेट हो जाएगा, आपका पॉइंट वहां पे लोकेट हो जाएगा। दिस इज द प्रैक्टिकली एज पर द क्वाड्रेंट मॉडल हाउ यू कैन assume it, क्लियर। लेकिन अब हमने इस पॉइंट को लोकेट कहाँ करना है, लोकेट तो उसने प्रोजेक्टर पे बोला है, तो प्रोजेक्टर पे लोकेट करने के लिए अगेन व्हाट विल डू, फर्स्ट वी विल लोकेट xy लाइन, देन वी विल लोकेट द प्रोजेक्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने xy लाइन लोकेट कर दी, फिर हमने प्रोजेक्टर लोकेट कर दिया, और अगर मैं इधर से 90 डिग्री देख रहा हूँ, पॉइंट 25 है, तो डेफिनेटली पॉइंट 25 अब भी दिखा आपको, यहाँ पे देखा 25 ऊपर है, तो ये 25 में डिस्टेंस दे रहा है कि 25 अबव HP है, तो आपका ये पॉइंट 25 डेफिनेटली अबव HP चला गया। अब देखो ड्रॉ कैसे हो रहा है, तो 25 अबव HP चला गया, इट मीन्स अबव XY हमारे पास 25 पॉइंट ऊपर चला गया। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू ऑफ योर पॉइंट D डैश, क्लियर। अब उसने ये नहीं बताया था पॉइंट इज हाउ मच इन फ्रंट ऑफ VP, तो डायगोनली डिस्टेंस कट करने पे हमने क्या किया, पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया कि पॉइंट इज हाउ मच इन फ्रंट ऑफ VP। सो अगेन वी रिपीट दैट पॉइंट इज हियर, वी ओपन द कंपास xy to 50, xy से 50 से हमने कंपास ओपन किया, एंड हियर वी हैव द पोजीशन ऑफ द xy, यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे वो कट कर रहा है, तो ये रेट अपना कट कर दिया हमारे पास कितना डायगोनली डिस्टेंस, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज रेडियस, how much, that is the radius 50 कट कर दिया, so this is the radius 50, क्लियर। एंड यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया क्योंकि डायगोनली डिस्टेंस बोला था। अब आपने टॉप से देखा तो वो पॉइंट टॉप से 90 डिग्री देखा, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ फॉल होगा, डेफिनेटली इट फॉल ऑन HP, इट फॉल ऑन XY लाइन, यहाँ पे फॉल हो गया उसका प्रोजेक्शन व्हेन यू सी फ्रॉम इट्स टॉप, तो यहाँ पे फॉल हो गया, and here the both planes are meeting each other, तो वहाँ पे हमने क्या किया, प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो गया, इट मींस D डॉट XY पे ऊपर क्या आ गया, वो HP के ऊपर डिस्टेंस, ये जो D था, D डैश था, ये XY के ऊपर क्या आ गया, D नॉट, D नॉट मींस जीरो डिस्टेंस होते हैं XY और HP और VP के ऊपर, तो HP के ऊपर D नॉट आ गया, एंड ओपन द कंपास फ्रॉम XY टू D नॉट एंड रोटेट इट बिकॉज वी रिक्वायर्ड इन द टॉप व्यू, तो अब आपका D आपका यहाँ पे आ गया, तो इट मींस D डैश यहाँ पे था, तो D यहाँ पे लोकेट हो गया, फ्रंट व्यू यहाँ लोकेट हुआ आपका, और टॉप व्यू यहाँ लोकेट हो गया विद दिस मेथड, क्लियर। तो सेम हमने इसको XY प्रोजेक्टर को माना हमने, और यहाँ पे हमने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, तो इट मींस अब आपका D यहाँ पे लोकेट हो गया। सो इफ दैट इज फ्रंट व्यू, देन दिस D1 इज योर टॉप व्यू, क्लियर। And in that case what you can do, in that case आपको ये पूछ सकता था इस केस में कि what is the distance of that D in the front view, above HP तो 25 था, तो ये डिस्टेंस हमें नहीं कवर था कि how much in front of VP, that distance is not covered, how much in front of VP, तो हमने इस D को फोल्ड कराया, HP पे D नॉट आया, XY से D नॉट तक खोल के हमने कंपास रोटेट किया, और जहाँ पे भी जाके ये कट किया, वहाँ पे D लोकेट हो गया, so with that method we can measure it how much in front of VP, तो इस मेथड से हमने मेजर कर लिया कि हाउ मच इन फ्रंट ऑफ VP है। तो अगर आपको बोला उसने कि D is how much in front of VP, then you can measure from the XY line to D here, and write here that is how much in front of VP. So it means if the diagonal distance is given,
then you can find the D is how much in front of VP. तो इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि D is how much in front of VP with the diagonal distance. क्लियर? तो इट मींस अब आपको इन फ्रंट ऑफ VP नहीं ना देके उसने डायरेक्टली डायगोनल डिस्टेंस दे दिया, D का डायगोनल डिस्टेंस दे दिया था, and with the diagonal distance you can find that is how much in front of VP. With this method you can measure it and write here that is how much in front of VP. Clear? So in the unsolved problem, last unsolved problem इस चैप्टर की में उसमें थोड़ा रिवर्स दिया गया है. उसमें क्या किया कि उसने ये दिया है कि above HP and in front of VP and he said what is its least distance from the XY line. तो अगर ये दिया होता कि सपोज ये 25 है और सपोज 35 है, तो आप 25 लोकेट करके और ये डायगोनल डिस्टेंस मेजर कर देते एंड दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस यू कैन मेजर इट. डेफिनेटली यू कैन मेजर इट. तो समटाइम ही कैन गिव द डिस्टेंस फ्रॉम अबव HP in front of VP and measure the least distance. Sometime he can give one distance and with that he can give the least distance and he can find out the other distance above HP and in front of VP like this. Clear? So you can find it. So with that this chapter is finished. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, आज हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया 2 लेक्चर्स में इसको प्रॉपर. तो आप इसको एक बार फिर दोबारा रीड करना. इसका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का पार्ट 1 है, उसको अच्छी तरह रीड करना. पहले मैंने कंसेप्ट समझाया था. एक्चुअली ये चैप्टर 3 पार्ट में यूट्यूब पे मिलेगा आपको. पहले मैं क्वाड्रेंट मॉडल का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है, और साथ साथ व्यू का कंसेप्ट समझाया था. दूसरे में क्वाड्रेंट मॉडल और पॉइंट का कंसेप्ट समझाया और तीसरे में हमने जो इसकी बची हुई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर ली. सो विद दैट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. स्केल अपना खत्म हो चुका है. मे बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्निकल लेटर्स एंड मे बी वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन. तो उन दोनों में से एक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक जरूर देखा कीजिए. जब तक आप लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप, ड्राइंग क्या है, दैट इज द स्टेप बाय स्टेप लाइक ए मैथमेटिक्स. तो सेम ऐसे ही लेक्चर को जब तक आप स्टार्ट टू एंड स्टेप बाय स्टेप जब तक आप नहीं लर्न करोगे, जब तक आप नहीं फॉलो करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. क्योंकि ड्राइंग में कोई भी एक स्टेप बीच में छोड़ते हो तो अगला स्टेप आपको समझ आने वाला नहीं है. ये तो पक्की बात है, लाइक ए मैथ. ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग को कवर करना है. तो स्टेप बाय स्टेप कवर करने के लिए आपको ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ यूट्यूब का, इस लिंक पे पूरी फुल वीडियो होगी और इस वीडियो को आप प्रॉपर कभी भी कहीं भी देख सकते हो और उसको जरूर देख के उसके साथ साथ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, और फॉर द अदर लेक्चर्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. और फैकल्टी मेंबर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने स्टूडेंट्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर जरूर करें. आपका चाहे स्टूडेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, ठीक है ना, जो भी आपका ग्रुप है उनके साथ उस ग्रुप में इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.